पता नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। हमको Good morning, children. How are you all? Ayush. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Fine. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Yes, good morning to all of you. Good morning, ma'am. Ma'am, Good I have morning. a question. Yes, what is the question? Tell me. Ma'am, Good morning. our test is coming very close. So, what is the portion? I am going to speak. हम बता रहे हैं. Now, children, one of you have just asked one question that टेस्ट का टाइम हो गया, पोर्शन क्या होगा. तो पोर्शन तो अब हो सकता है हम रिपीट भी कर सकते हैं जो दिया हुआ लेसन, या नया लेसन भी दे सकते हैं. So I want to give you at this time a new lesson, and that is the lesson 4. I think lesson 4. It should be. It is good. The last examination we have on that dated 26, and that 26/7, and natural occurrence. That is the rocks, the earth, and lesson 3. It was lesson 3. Was it? Lesson 3 हम लोग का था ना. उसके बाद तो अभी हम लोग कर लेते हैं. भी हम लोग का पोर्शन जो होगा एग्जाम का, बिकॉज आप लोग उसको देखिए. लेसन 12 दैट इज आवर पोर्शन फॉर द एग्जामिनेशन. लेसन 12, एंड इसको हम स्नैप होमवर्क पे भी डाल देंगे, व्हाट्सएप पे भी आपके ग्रुप में अभी तुरंत एग्जाम ओवर होगा डाल देंगे. और yesterday I have taken some one test, and but yesterday there was net problem in my surrounding. Line भी नहीं था, net भी नहीं काम कर रहा था. That's why I have not posted the question answer to you. But children, you have, हम लोग उसको आंसर को मिलाएंगे. पहले क्वेश्चन था डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन. एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से ऑल ऑफ यू देख लीजिए, अपने कॉपी को खोल लीजिए, स्क्रीन शेयर करिए. You share please screen with me. All of you please share your screen with me. And how many of you are sitting with your yes, I am just saying. और सारे लोग all of you कि हम सबका स्क्रीन पे हम देख सकें इसका लिखा हुआ है आंसर. Those who are attending the classes, please share your copy. share screen करके share करके हम copy को दिखाएंगे. All of you please show. Yes, सारे लोग जितने भी बच्चे आ रहे हैं. There are 88 participants at this time. 88 participants at this time. I am taking attendance. I आपका am attendance. taking attendance. Okay. Now. Yes, all of you. आप लोग स्क्रीन शेयर करिए. स्क्रीन पे आइए मेरे सामने. All of you come. स्क्रीन पे आ जाइए सारे लोग. All of you स्क्रीन पे आ जाइए. I want to see you. Ma'am, please. I'm going to repeat the question once again. Define constitution. The question was number 1 was define preamble. Number 2. Number 3 was what is universal adult franchise. Number 4, what is operation blackboard. Number 5, which system create social division in the nation. Number 6, who has given a speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949. What is the minimum age to be a voter in India? Number 8, Rahul has written a letter to whom? राहुल ने एक लेटर लिखा था, किसको लिखा था? उसका नाम आपको बताना था. What is community? Number 9. Number 10, according to the socialist, secular and democratic republic. Number 10,
Number 11, sorry. What is meant by secularism? And number 12, mention the main provisions of the right to equality. And children, one thing I have told you that each question consists of 1 marks. हर question के लिए 1 number आप लोगों को हमने दे दिया था. And I have told you to that put 4 marks for the question number 12. It means the total number was 15. और अभी हम जल्दी से जल्दी आप लोग को एक आंसर इसका बता देते हैं. नहीं, आंसर नहीं बताते हैं. फर्स्ट एट ऑल आप लोग को लेसन 12 एक बार पढ़ा देते हैं और आंसर आई विल पोस्ट यू इन द स्नैप होमवर्क and your WhatsApp group also, because lesson is tomorrow I have no class and a day after tomorrow we have a test. So lesson 12 is our lesson 12, Turkish invasion in North India. That is our chapter of for given chapter, given portion for the upcoming test. जो हम लोग का टेस्ट होने वाला है उसके लिए ये हमारा क्वेश्चन है. So please children be aware and pay attention. Turkish invasion in North India. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule limited to a specific region, though they constantly aspired to extend their boundaries. अब कहता है कि इंडिया में क्या what were the political condition of India at that time, जब टर्किश इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, ये हम लोगों को मतलब मेन जानना है. तो व्हाट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया उस समय कैसा था, तो ये था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द होल इंडिया वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम. और हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया. आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम ड्यू टू द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज वीक सक्सेसर. ये क्यों हो गया था? क्योंकि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा नहीं था और साथ साथ जो हर्षवर्धन के जो सक्सेसर मतलब उसके बाद जो राजा बने उन लोग बहुत अच्छे नहीं थे. दिस वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया और मेनी पावरफुल किंगडम्स अरोज बिटवीन दिस आउट ऑफ द ruins of Hर्षर एम्पायर. और आफ्टर बट all these kingdoms constantly fought, हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे. All these kingdom has they constantly aspired to extend their boundaries, क्योंकि उन लोग हमेशा ही ये क्या चाहते थे कि हमेशा मेरा राज्य आगे बढ़ता रहे. नेक्स्ट द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पॉलिटिकल कंडीशन का जो व्हाई इट हैज अट्रैक्टेड तुर्क्स टू इंडिया. तुर्क्स इंडिया में क्यों आए, इसका मतलब आंसर ये होगा जो समझना है आप लोगों को. द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत्स रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया. मतलब जो आपस में राजपूत लोग लड़ते रहे, इससे क्या हुआ? पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी मतलब आपस में झगड़ा, डिसयूनिटी मतलब झगड़ा. दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन बाय द तुर्क्स. अब इससे क्या हुआ कि तुर्क अटैक करने के लिए इंडिया पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिल गया. अब्बासी खलीफा ऑफ बगदाद रिक्रूटेड द तुर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल गार्ड्स. हु वे तुर्क्स? अब तुर्क्स कौन थे? तो ये लोग बगदाद के रहने वाले थे. तो बगदाद के अब्बासी खलीफा ऑफ बगदाद recruited the Turks and professional soldiers. By the end of the 9th century, the power of Khalifa weakened. अब 9th century में क्या हुआ? खलीफा जो तुर्क को रिक्रूट करते थे उनका पावर क्या हुआ? जोर हो गया. Turks slowly took over the power and became governor of the province. अब तुर्क ने धीरे धीरे क्या किया? खलीफा जब कमजोर होते गए तो उन लोगों ने पावर अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे वो लोग खलीफा गवर्नर बन गए. Some of them asserted their independence from the Khalifa. उसमें से भी कुछ लोगों ने अपना खलीफा से अपना इंडिपेंडेंस कर लिया कि हम आई एम नॉट विथ यू, आई एम इंडिपेंडेंट. द वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान स्टार्टेड अ न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नोन एज गजनवीज. अब उसी में का एक गवर्नर जो था जो गजनी को जीता था, गजनी का था, अफगानिस्तान का रहने वाला, गजनी जगह था. तो उसने क्या किया? एक नया रूल का, तो दैट इज गजनवीस. उसको क्या बोलता था? गजनवीस. मोहम्मद गजनी was born in 971 CE. तो गजनवीस का जो सबसे पहला राजा जिसको बता रहा है वो कौन था? मोहम्मद गजनी was born in 971 CE. ये ascended the throne in 998 CE. और राजा कब बन गया? 998 CE में राजा बन गया. He decided to invade northwest India, where the Gurjar, northwest मतलब गुजरात के तरफ,
राजस्थान गुजरात का एरिया, northwest India, where the Gurjar Pratihar Empire had become weak. पल्लव और राजपूताना से लड़ते लड़ते गुर्जर प्रतिहार लोग कमजोर हो गए थे और उसी तरफ से उसने इंडिया में आने का प्लान बना लिया। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम इन 27 27 साल में के अंदर 17 बार इंडिया पर अटैक किया। He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. वो गजनी जो कि एकदम एक छोटा सा पहाड़ी जगह था और गरीब जगह था, तो उसको वो बहुत बड़ा एक पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था। वो क्यों इंडिया पर अटैक किया, ये कारण था। Gained the control of Afghanistan and मतलब अपने हाथ में ले लिया। अब इंडिया की तरफ अट्रैक्शन का क्या कारण था देखिए, क्योंकि गजनी एक हिली एरिया था, पुअर रीजन था, और उसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो इंडिया की तरफ ही वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। इंडिया में उस समय बहुत पैसा था, इंडियंस वे आर वेरी रिच, और जो उसको पता चल गया कि इंडियंस आर वेरी रिच एंड दे आर फाइटिंग टुगेदर, तो उस कंडीशन का फायदा उठाने के लिए उसने क्या किया कि इंडिया पर अटैक कर लिया। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया लाइक नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कनौज। अब उसने क्या किया कि नॉर्थ इंडिया के जो टाउन्स और ये थे उनको अपने प्लंडर करना, मतलब लूटपाट करना शुरू कर दिया। नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कनौज। His most destructive attack was directed against सोमनाथ टेम्पल। उसका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव अटैक था, मतलब बर्बाद करने वाला, डिस्ट्रक्टिव मतलब बर्बाद करने वाला, वो था सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उसको तोड़ दिया। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेसिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। राजपूत वॉरियर लोग बहुत मतलब हिम्मत से लड़े, लेकिन लड़ाई हार गए। महमूद ब्रो द आइडल ऑफ सोमनाथ। महमूद ने क्या किया, सोमनाथ के मूर्ति को तोड़ दिया, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपी, और 20 मिलियन रुपी लूट करके ले गया। Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. अब उसमें कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि महमूद गजनी जो है इस्लाम को का प्रचार करना चाहता था और मुस्लिम के बीच में पॉपुलर होना भी चाहता था। महमूद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब देखिए, अब महमूद के इन्वेजन का जो एक तो लूटा, और सेकेंडली क्या हुआ, जब हम लोग को बाहर के लोगों को पता चल गया कि इंडियन में जो इंडियन रूलर्स है आपस में लड़ते रहते हैं, वीकनेस मतलब इनकी कमजोरी क्या है, आपस में लड़ते रहना, तो इससे लड़ते रहने से क्या होता है, ये लोग आपस में कमजोर हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं मुसीबत के समय, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुस्लिम रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मेनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। अब बहुत सारे मुस्लिम जो है व्यापार करने के लिए, ट्रेड इंटरेस्ट का मतलब होता है व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी इंडिया में आकर रह गया, क्योंकि उस समय इंडियन ट्रेड जो है ओवरसीज में होता था, फॉरेन भी होता था और अंदर भी होता था, तो बहुत पॉपुलर, मतलब इंडियंस वर वेरी रिच एट दैट टाइम, इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। अब इसी समय क्या हुआ कि कल्चरल एक दूसरे का मतलब जो हम लोग हैबिट्स, कल्चर क्या होता है कि एक दूसरे की आदतें एक्सचेंज होना शुरू हुआ, मतलब हिंदुओं ने मुस्लिम से सीखा, मुस्लिम ने कुछ हिंदुओं से भी सीखा, दैट इज द कल्चरल सेंट्रल एशिया से के लोग जो है हमारे तरफ आए, हम उनके तरफ गए। बट महमूद डिस्ट्रक्शन वाज वैल्यूएबल और वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल एंड आइडल्स वाज ए ग्रेट लॉस टू इंडियन हेरिटेज। लेकिन कहता है कि लेकिन महमूद जो मतलब इंडिया का जो कीमती और कलात्मक मतलब बहुत अच्छा मतलब बना हुआ उस मूर्ति को जो तोड़ा, तो इससे क्या हुआ कि इंडियन का हेरिटेज का मतलब हमारे मतलब सांस्कृतिक हमारे विरासत को बहुत बर्बादी हुई, क्योंकि वो सब जो है मतलब अनमोल जिसको कहिएगा प्रेसलेस, उसका मतलब कोई कीमत नहीं बताया जा सकता, इतना वो कीमती था, इतना वो बढ़िया था, और उसको उसने तोड़ दिया। Do you know Mahmud Ghazni is remembered as a plunderer of towns and temples in India। अब कहता है कि इंडिया में हम लोग महमूद गजनी को एक लुटेरा के रूप में याद करते हैं, but in his own country he is remembered as a great builder of beautiful mosques, palaces and libraries। लेकिन अपने कंट्री में ही उसको याद किया जाता है अच्छा अच्छा मॉस्क बनाने वाला, पैलेस और लाइब्रेरी बनाने वाला।
Firdausi, a famous poet, wrote Shahnama in which he praised the steps that Mahmud Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire. He also entrusted Al-Baruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab-e-Hind. और अल बरूनी को मतलब बोला भी कि एक किताब लिखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जिसका नाम था किताब-ए-हिंद। उसका नाम क्या था? किताब-ए-हिंद नाम था। Mahmud Gori was the ruler of a small kingdom of Gorin. अब महमूद गजनी के बाद अब गोरी को हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन था? गोरी कौन था? वो गोर, अफगानिस्तान में गोर एक जगह है, छोटा सा जगह है जहाँ का कि वो राजा था। उसके बाद तो वो ही conquered गजनी, he placed it under the charge of his brother. उसने गजनी को जीत लिया और गजनी को अपने भाई के अंडर में रख दिया and decided to turn his attention towards India. अब उसके बाद अपना ध्यान किधर लगाया? इंडिया की तरफ लगाया। To expand his empire, unlike Mahmud Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India. अब उसने मोहम्मद गोरी और गजनी में देखिए क्या फर्क था। गजनी यहाँ के धन से लेकर के लूट करके वापस गया, लेकिन ये जो है गजनी का, गोरी का एम था यहाँ पर एक्सटेंड करना, अपने इसको कहेगा किंगडम को बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। अब कहता है कि मुस्लिम एम्पायर इंडिया में करने वाला, मतलब मुस्लिम एम्पायर जो कि मतलब मुस्लिम राज करने का मतलब हुआ मुस्लिम राज इंडिया में स्टेब्लिश करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो वो मोहम्मद गोरी को जाता है। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। और उस समय देखिए पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। इस समय जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। और उसने क्या क्या कि कौन कौन सा जगह जीता उधर से? पेशावर, लाहौर एंड सिंध। अफगानिस्तान देखिएगा पाकिस्तान के तरफ से इंडिया से सटा हुआ है। He was defeated in the first battle of the Rhine by पृथ्वीराज चौहान। उसको फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। But was victorious in the second battle of the Rhine and took over Delhi and अजमेर। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ द राइन में जीत गया और दिल्ली और अजमेर को अपने कब्जा में ले लिया। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। अब कन्नौज के जीते बिना उसका जो है मतलब ये जो है इंडिया को जीतने का सपना पूरा नहीं हो रहा था। इस्लामिक एम्पायर मतलब एक इस्लामिक देश बनाना इंडिया को, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। क्योंकि आप लोग इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कन्नौज पे क्यों ध्यान था, क्योंकि कन्नौज जो था सेंटर ऑफ पावर था। पृथ्वी हर्षवर्धन जो है कन्नौज का ही राजा था, तो जिसकी वजह से कन्नौज पे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी होता रहता था। आप पढ़े हैं राजपूत और प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा और उसमें चोला, इसमें क्या कहते हैं राजपूत एंड राजपूत में, ये तीनों जो है आपस में लड़ते रहते थे। इसके टू कॉन्कर द कन्नौज, तो इसलिए कन्नौज जो है सेंटर ऑफ पावर था। उस पर जो है ट्रिपाटाइट स्ट्रगल उसका बहुत फेमस है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। और ट्रिपाटाइट स्ट्रगल का मतलब है तीनों मिलकर लड़ना। तो बारी बारी से पालाज, प्रतिहारा और राजपूताज इसके लिए लड़ते रहते थे। और बारी बारी से कभी पाला जीत जाते थे, कभी प्रतिहार जीत जाते थे, कभी राजपूताज जीत जाते थे। तो उसी तरह से मोहम्मद गोरी जो है जब इंडिया पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो लेकिन उसका ये था कि जब तक यहाँ पर हम जो है मतलब इस्लामिक स्टेट तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि हम कन्नौज को जीत नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो है राजपूत विदाउट द फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द राजपूत। तो इसके लिए क्या हो, फियर्स मतलब बहुत भयानक लड़ाई हुई किसके बीच में? मुस्लिम और राजपूतों के बीच में। द पावर ऑफ राजपूत वाज क्रस्ड। इसमें राजपूत हार गए। क्रस्ट का मतलब उनके पावर को खत्म कर दिया। एंड किंग जयचंद वाज डिफीटेड एंड मोहम्मद गोरी ऑक्यूपाइड कन्नौज। अब किंग जयचंद जो है उसका हेल्प किया था पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में, बाद में वही हार गया। उसी को क्या किया मोहम्मद गोरी, फिर उसको भी मार दिया, ऑक्यूपाइड कन्नौज। और उसके बाद कन्नौज को अपने ऑक्यूपाई में ले लिया, जीत लिया। कन्नौज एंड बनारस दो जगह जीता और खूब वहां पे मतलब लूटपाट किया, मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाया, इस तरह का काम किया। मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। मोहम्मद गोरी का अपना कोई भी एक बच्चा नहीं था। He put his territories under the charge of his trusted slave and general कुतुबुद्दीन ऐबक। तब अब जब उसका कोई अपना बच्चा नहीं था तो उसने क्या किया, अपने जो यहाँ का जो राज था
उसका एक जनरल था, जनरल मतलब जो उसके अंडर में लड़ता था, सिपाही था, मतलब बड़ा ही पोस्ट था, जनरल इज अ बिग पोस्ट इन द आर्मी और हाई पोस्ट इन द आर्मी, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को यहाँ का राजा बनाकर चला गया। द डिसयूनिटी, अब कहता है कि क्यों वो लोग जीते, वाई द मुस्लिम्स, मोहम्मद गजनी और महमूद गोरी क्यों जीते, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी क्यों जीते, तो उसका कारण फिर से बताता है। द डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन रूलर्स एंड द कास्ट सिस्टम वर द मेन कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ गोरी एंड द डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड as they had no contact with the rulers. Some Rajput rulers held the Turks against their own country. Moreover, the feudal system, where the land owners were very powerful, weakened the power of the king. अब कहता है कि इंडियन रूलर्स आपस में लड़ते रहते थे, और जो कॉमन लोग थे, जो मतलब कॉमन लोग कौन, प्रजा, जो उनके अंडर में राजा के साथ जो रहते हैं, पब्लिक पीपल, हम लोग के जैसे लोग, तो वो लोग राजा से डायरेक्ट नहीं, राजा उनसे डायरेक्ट, राजा अपने आप में रहते थे, और चापलूस लोग जो है राजा से लोगों को मिलने नहीं देते थे, और कास्ट सिस्टम भी था एक। उसके सब राजपूत रूलर्स में, कुछ राजपूत रूलर्स जिनमें जयचंद भी था, उसने जो है हेल्प किया तुर्क को, अपने मतलब जयचंद बुला लिया था क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी। इसी तरह और बहुत सारे राजा थे जिन लोगों ने हेल्प किया। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम, जिसमें कि राजा जो लैंड ऑनर राजा बनाता था, जिसको सामंत कहलाते थे वो लोग, लेकिन वो लोग उसमें रूल रहता था, राजा एक सर्ट कंडीशन रहता था, राजा देता था कि आप लोग जब है, जब एट द टाइम ऑफ द नीड वार अगर हम किसी से करने जाएंगे तो आप लोग आर्मी रखिएगा और उस आर्मी के साथ मेरी मदद करिएगा। बट द फ्यूडल लॉर्ड्स हैव they follow the rules for some time and they break the rules and they started to stop the help to the king, and it has weakened the power of the king. The feudal landowners this habit has weakened the power of the king. Gori army was well equipped and his campaigns were properly planned. और दूसरा क्या था, मोहम्मद गोरी जब भी आया तो उसका आर्मी जो है वेल इक्विप्ड, मतलब उसके पास मतलब सारा कुछ जो भी लड़ने के लिए जितना सामान चाहिए वो सब कुछ उसके पास रहता था, और खूब प्लानिंग से अटैक करता था कि हारने का कोई गुंजाइश नहीं हो। The Muslim armies moved swiftly on their horses as compared to the armies of the Indian ruler. अब मुस्लिम लोग जो उसी समय हॉर्स लेकर आया था, घोड़ा पर चढ़ के वो लोग लड़ता था, तो हॉर्स को देखते हैं कि आप देखिएगा कि आराम से दौड़ता है, फुर्तीला होता है, और इंडियन रूलर्स उस समय रथ पर बैठ के, हाथी पर बैठ के लड़ते थे। तो हाथी जो है, एलिफेंट, एक तो जगह भी ज्यादा लेता है, दूसरा कि कभी कभी क्या होता है कि जब गुस्सा हो जाता है तो जो लोग उसमें बैठे रहते हैं उनको भी गिरा के मार देता है, अपने आर्मी को ही अपने पैर के नीचे दबा देता है। तो इससे क्या हुआ, उनका और प्लस उनका जो जितना भी इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट मतलब जिसे लड़ाई लड़ा जाता है, जैसे बंदूक, गोली, रिवॉल्वर, जो कुछ भी होता है, वो सब जो था पुराना मेथड का था, नया नहीं था। The elephant were not of much help during the wars, as many a time they turned their wrath on their own forces. Wrath मतलब अपना गुस्सा कभी कभी वो लोग क्या करते थे, अपने ही फोर्स पे दिखा देते थे। So these were the important points of lesson 12. This is your test portion, children. Some of you have asked me in the beginning of the class, and I will post it in your WhatsApp group and on the snap homework. और प्लीज 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 थोड़ा पढ़िएगा, आप लोग पढ़ करके अच्छे से दीजिएगा। Now I am going to tell you, tick the correct option. The first Muslim invasion in India was led by Mahmud of Ghazni. Answer is Mahmud of Ghazni. Mahmud of Ghazni attacked India mainly to plunder the wealth of India. इंडिया के प्लंडर मतलब लूटने के लिए, तो इंडिया का जो धन था उसको लूटने के लिए। Who defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain? पृथ्वीराज चौहान। Who defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain? पृथ्वीराज चौहान। Who among the following were the first to bring Islam into India? तुर्क्स, क्योंकि तुर्क्स ने ही सबसे पहले अटैक किया था, इसलिए तुर्क्स brought Islam into the India. The trusted slave and general appointed as a deputy of Indian territory by Muhammad Ghori was Kutubuddin Aibak. Kutubuddin Aibak. He was Kutubuddin Aibak. उसके बाद fill in the blank.
War among Rajputs resulted in political instability. War among Rajputs resulted in political instability. Now, yes, children. Next step, Turks were recruited as guards and professional soldiers by the Khalifa. Turks were recruited as guards and professional soldiers by the Khalifa. Ananya, you are speaking something? What you are speaking? Ananya, 7E, roll number 9. Are you speaking something? You want to say something, Ananya? What? Ghazni most destructive attack was on Somnath temple in 1025 CE. Ghazni most destructive attack was on Somnath temple in 1025 CE. Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan in not Prithviraj Chauhan, he was defeated by King Bhimdev in Gujarat. King Bhimdev in Muhammad Ghori was defeated by King Bhimdev in Gujarat. Indian society was based on caste system. Indian society किस पर बेस्ड था? कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था. Now children, write true or false for the following statement. Following statement का बोलते हैं true or false बताना है हम लोगों को. Mahmud Ghazni invaded India 17 times. It is, yes, it is true. Mahmud Ghazni invaded India 17 times in 27 years, sorry. Many Muslims settled in India due to their trade interests. It is also true. Muhammad Ghori was defeated by defeated in both the battle of Tarain. ये false है. एक battle में पहला में हारा था और दूसरे में जीत गया था. मोहम्मद गोरी conquered कन्नौज एंड बनारस. ट्रू है, उसने कन्नौज और बनारस को जीता था. मोहम्मद गोरी had 3 children. false है, he has no children. उसका कोई भी बच्चा नहीं था, इसी वजह से उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बना दिया था. Yes, Ananya, 7E, what is your question? Why you are raising your hand? आपका हाथ हैंड रेज करके क्यों है? आई एम गोइंग टू अनम्यूट. चिल्लाइएगा नहीं, जिसको बार बार बोलना होगा वही बोलेगा, सब कोई नहीं चिल्लाइएगा. बोलिए अनन्या, क्या बोलना है? यस अनन्या. मैम, हाँ बोलो. तुर्की के आदमी ये सिटीजन्स को बोला जाता है क्या? अब क्या अभी? यस, तुर्की एक जगह है तुर्क में. यस, एक जगह है तुर्की. मैम, यस मैम, ठीक करेक्ट ऑप्शन में 2 नंबर का हम नहीं लिख पाए मैम. तो उसका ट्रू है. मुस्लिम सेटल इन इंडिया ड्यू टू देयर ट्रेड इंटरेस्ट. ये ट्रू है मैम. करेक्ट ऑप्शन का टिक द करेक्ट ऑप्शन. यही तो बता रहे. नंबर सी ना मैम. नहीं, अच्छा, सॉरी. टिक द करेक्ट ऑप्शन ए का नंबर 2. यस मैम. Mahmud Ghazni attacked India mainly to plunder the wealth of India. मैम, fill in the blanks का second last वाला क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Muhammad Ghori was defeated by King Bhimdev in Gujarat. King Bhimdev. Yes, King Bhimdev in Gujarat. मैम मोहम्मद गोरी जो थे वो इंडिया को इन्वेट करने से पहले जो गोर का चार्ज था वो अपने ब्रदर को दिए थे.
तो फिर वो जब इन्वेड करके वापस गए होंगे तो राजा वहाँ का कौन रहा होगा? वही मोहम्मद गोरी। मैम पर मोहम्मद घोरी को तो रास्ते में एक खोखार सोल्जर में मार दिया था। रास्ते में नहीं, वहां के जा करके मारा था, रास्ते में नहीं मारा था। वो कुछ कहानी पता नहीं है। मम्मी यहाँ पे, हाँ बोलो। यस यस, एनी प्रॉब्लम? और कुछ क्वेश्चन? हम बता रहे थे वो टर्की वाला। मैम एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलो। मैम एक बार डी बता दीजिए ना। लिस्ट द प्लेसेस दैट वर इन्वेडेड बाय मोहम्मद गजनी इन इंडिया। List the, I am going to read the question. List the places that were invaded by Muhammad Ghazni in India. ये है पेज नंबर 91 में जाइए। Go on पेज नंबर 91। नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। कन्नौज, यस। नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज, these were the places। बस आप सिर्फ नेम ही लिखिएगा, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा। ओके मैम। और एनी क्वेरी, किसी का और कोई क्वेरी है? मैम आप टर्की वाला बताए नहीं। क्या बताना था टर्की वाला, बताइए। बताए तो। मैम हाँ यस। जो ये तुर्की थे वो टर्की के थे ना? यस, वही टर्की से ही तो कह रहा है कि तुर्क्स जो थे उधर से जो आए थे, टर्की जनरली उधर ही के, तो उस मुस्लिम्स को तुर्क्स कहा जाता था। और अभी एक जगह भी है तुर्की। यस मैम। यस, तो वहाँ के जैसे कैसे हम लोग इंडिया में रहने वाले इंडियंस कहलाते हैं, तो अब जो टर्की में रहते होंगे वो लोग तुर्क्स कहलाते होंगे। लेकिन उस समय fill in the blanks का 2 नंबर। Fill in the blanks number 2. Turks were recruited as guards and professional soldiers by the Caliph. Turks were recruited as guards and professional soldiers by the Caliph. और any query और पूछिए। मैम पोर्शन चैप्टर 18 है। मैम fill in the blanks का 1 बताइए ना। चैप्टर 12 जिसको अभी पढ़ाया आप लोगों को। मैम fill in the blanks का 1 बताइए ना। मैम fill in the blanks का 1 नंबर बताइए ना। मैम एक बार ट्रू और फॉल्स रिपीट कर दीजिए ना। राजपूत होगा फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 1। नंबर 2 होगा नंबर 3 सोमनाथ टेम्पल इन 1025 सी। नंबर 4 नंबर 2 बताइए ना। गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। नंबर बोल ही नहीं रही है। थर्ड नंबर। नंबर 3 सोमनाथ टेम्पल इन 1025 सी। नंबर 4 किंग भीमदेव। नंबर 5 यस किंग भीमदेव 4 का फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 5 बर्न सिस्टम और कास्ट सिस्टम। ट्रू और फॉल्स देख लीजिए। नंबर 1 जो होगा ट्रू। क्या बोले? किंग भीमदेव बोले। नंबर सी को देखिए। 3 चीज के बारे में पढ़ाई हुआ। गजनी, नंबर 1 2 मोहम्मद गौरी, नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान। कौन हु इज रिपीटिंग इट? हु इज रिपीटिंग? अब हिस्ट्री तो शुरू हुआ है हम लोग का। अभी हिस्ट्री शुरू हुआ है ना। अभी हिस्ट्री का अलग बुक भी आ जाएगा। नंबर 4 ट्रू, नंबर 5 फॉल्स। ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।